Welcome to my channel. Today we will learn the poem or read the poem Motion written by Octavio Paz. Octavio Paz, the poet, Mexican poet and a diplomat and a writer also. He was born in 31st March 1914 and died in 19 April 1998. He was awarded the Nobel Prize in 1990. He was influenced by Marxism, surrealism, existentialism, as well as the religion like Buddhism and Hinduism. And the Motion poem by Octavia Paz is a philosophical exploration of movement and exchange. So one type of revolutionary element also you can find inside the poem that was written by Octavio Paz. And this poem initially it was written in Mexican language and later on Mexican language, and the name is Movimiento, and later on it was translated in English as Motion by Elliot Wittenberg. So now we will learn the poem. The poem is like this. If you are the amber mare, I am the road of blood. If you are the first snow, I am he who lights the hearth of dawn. If you are the tower of night, I am the spike burning in your mind. If you are the morning tide, I am the first bird's cry. So means here you can find that means the poet Octavio Paz describing about his what encounter with his enemy, and it is seems that through this poem we can guess, or we can take the what maybe here in this poem Octavio Paz was struggling in his mind about some pain or pain. So because of that he thought this struggle as his enemy. And it is also said that means it was that time when Octavio Paz was separated from his wife. So it is quite obvious that he thought his wife may be his enemy, and so because of that he addressing his enemy in such a way that means whatever the problems the enemy will brought in front of him, he gets ready to face it in different way. So the poem, if you are the amber mare, I am the road of blood. So here amber mare means it is a translucent yellowish brown फॉसिल रीजन, मीन्स एक स्टोन है जो पहले सॉफ्ट रहता है बाद में हार्ड हो जाता है, और उसमें जो भी घुस जाता है उसके ऊपर वो वैसे ही हार्ड होके रह जाता है. तो वो बोल रहे हैं इफ़ यू आर द एम्बर मेयर, अगर तुम एनिमी, उनके एनिमी को बोल रहे हैं कि अगर तुम उतना हार्ड हो सकते हो तो मैं भी क्या होगा, आई एम दी रोड ऑफ ब्लड, मतलब रोड में ब्लड का नौछावर हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, मैं खड़ा रहूँगा फेस करने के लिए. सो इफ़ यू आर द फर्स्ट स्नो, आई एम ही हु लाइट्स द हार्ट ऑफ डॉन. फिर बोल रहे हैं कि विंटर सीजन में क्या होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द एटमॉस्फेयर बिकम्स चिली, सो ड्यू टू द फॉल ऑफ स्नो. सो जब स्नोफॉल होता है विंटर सीजन में तो वेदर ऑटोमेटिकली चिली हो जाता है, बहुत ठंड रहता है. तो पोएट बोल रहे हैं द पोएट इज़ रेडी टू फाइट द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग द हार्थ ऑफ डॉन. तो बोल रहे हैं अगर रात में स्नोफॉल हो के ज़्यादा ठंड पड़ जाता है विंटर सीजन में, तो मैं क्या होऊंगा, एक हार्थ लगाऊंगा, एक चूल्हा जलाऊंगा, जो कि वो चूल्हा होगा जो डन मतलब सुबह का चूल्हा होगा, जो कि मेरा जो चिल्ड है, जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है उसको मैं भगा दूंगा बाय द हेल्प ऑफ लाइटनिंग द हार्थ एज अ डन. मीन्स सुबह ला दूंगा, मतलब सुबह हो जाएगा तब क्या होगा, जो ठंड है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से डिसअपियर हो जाएगा, जो कि किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, जैसे कि
पोएट को भी वो चिल वेदर, चिल एटमॉस्फेयर भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे पोएट खुद को बहुत स्ट्रांग दर्शा रहे हैं कि मैं उतना स्ट्रांग हूँ, जो भी चैलेंजेस तू लेके आएगा मैं खड़ा रहूँगा उसके जूझने के लिए। फिर कहते हैं आई एम ही हु लाइट्स द हार्ट ऑफ डॉन, सो इफ यू आर द टावर ऑफ नाइट आई एम द स्पाइक बर्निंग इन योर माइंड। सो फिर कहते हैं कि इन केस हिज एनिमी बिकम्स अ बॉडी ऑफ टावर of night, the poet is a spike burning in the mind of such enemy. So he is to act like this in order to combat his enemy. As a result, his enemy cannot make any more conspiracy against his life. So यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर इफ़ यू आर द टावर ऑफ नाइट, अगर रात का टावर अगर हो जाते हो, एनिमी हो जाता है, तो वो ऐसा बर्निंग स्पाइक हो जाएंगे कि कभी भी उस पोएट के अगेंस्ट में कुछ भी कंस्पिरेसी नहीं हो पाएगा। इट मीन्स व्हाट, वहाँ पे वो उजाला ही उजाला ले आएंगे वही रात में, अगर कोई भी उनके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कोई चाल चलते हैं तो। इट मीन्स एनिमी को ऐसे वो मतलब वार्न कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो बहुत स्ट्रांग है, जो भी चीज़ उनके अगेंस्ट अगर तैयारी किया जाएगा तो वो तैयारी को भी वो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन कर देंगे। मतलब कुछ भी उनके सामने नहीं चलेगा, वैसा ही वो बोल रहे हैं। इफ यू आर द मॉर्निंग टाइड आई एम द फर्स्ट बर्ड्स क्राई। अगेन ही सेड दैट कि अगर इन केस हिज एनिमी बिकम्स morning tide, he is ready to act like first bird's cry. The first bird's cry shows the daybreak. The voice of the first bird's cry is very sweet. Its sound surpasses the morning tide in sweetness. तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो मॉर्निंग टाइड हो जाता है उनका एनिमी, तो वो फर्स्ट बर्ड्स क्राई होंगे। सुबह का जैसे बर्ड्स जब वो गूंजता है बर्ड्स का वॉइस, तो क्या होता है, ऐसे मतलब जब बर्ड्स का आवाज़ होता है, गूंजता है उनका बर्ड्स का वॉइस, तो ये मतलब रात ख़त्म होके दिन सुबह आने वाला है, तो सुबह हो गया है। तो वो क्या करता है, बर्ड्स का क्राई और वॉइस वो जो रात का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको ब्रेक करके सुबह लाता है, वो मैसेज देता है। तो वो बोल रहे हैं रात कितना भी घना हो, कितना भी मतलब अंधेरा रहेगा, तो बर्ड्स जब आ जाएंगे तो सुबह होगा ही होगा। तो वो बोल रहे हैं कि जितना भी मतलब प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, जितना भी कुछ ऑब्स्टैकल मेरे लाइफ में मतलब मेरी एनिमी लाएगा, मैं उसको ब्रेक कर दूंगा। तो नथिंग कैन हडल इन माई पाथ, ही सेड इन दिस पोएम। देन इफ यू आर द बास्केट ऑफ ऑरेंजेस आई एम द नाइफ ऑफ द सन। अगेन वो बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, अगर बास्केट में ऑरेंज होता है तो उसका कलर बहुत ही सुंदर होता है। तो जितना भी सुंदर होने से भी क्या होगा, अगर ऑरेंज को हम लोग, ऑरेंज का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है और उसके ऊपर सुंदर लगता है, लेकिन अगर हम लोग नाइफ में उसको काट देंगे तो क्या होगा, सोर है कि स्वीट है जो पता चल जाएगा। सो यहाँ पर बोल रहे हैं द बास्केट ऑफ ऑरेंजेस आउटवर्डली लुक्स ब्यूटीफुल, सो इट मे बी सोर और स्वीट फ्रॉम आउटसाइड। इफ द ग्लेयरिंग लाइट ऑफ सन will put on it, then the sun spoils the outer beauty of the oranges in the basket. तो अगर सन का मतलब रे आ जाता है तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। सो वो खुद को सन का रे जैसे कंपेयर कर रहे हैं और ऑरेंजेस को, बास्केट ऑफ ऑरेंजेस को अपना एनिमी मान रहे हैं। सो इफ़ यू आर द स्टोन अल्टर आई एम द sacrilegious hand. So here
if the enemy will like the stone of altar, then he will be the sacrilegious hand. मीन्स यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्टोन अल्टर क्या होता है, इट इज़ ट्रीटेड एज समथिंग सेक्रेट एज इट पोजेसेस द रेलिक्स. सो if his enemy becomes a stone altar, the poet can spoil its sanctity. So here he said that अगर कुछ मतलब स्टोन ऑफ अल्टर एक सेक्रेट चीज़ है, पवित्र स्टोन है, अगर उसको एनिमी स्टोन अल्टर यूज करते हैं उनके ऊपर, तो वो क्या कर लेंगे, उसका जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, उसको वो नाश कर देंगे. If you are the sleeping land, I am the green can. Again he said that अगर उनका एनिमी बैरन लैंड हो जाता है, सो वो क्या होंगे, पोएट खुद ग्रीनलैंड हो जाएंगे, जहाँ पे विच कैन स्प्रेड ऑन द बैरन लैंड. It clearly reflects that the poet can extend his supremacy over his ever. तो अगर उनका एनिमी बैरन लैंड हो जाते हैं तो वो ग्रीनलैंड होके वहाँ पे क्या कैन उगा देंगे, जो कि एंडलेस होता है. तो इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट द पोएट कैन एक्सटेंड हिज सुप्रीमेसी ओवर हिज एनिमी. मीन्स वो अपने एनिमी को अपने ऊपर हावी होना नहीं देना चाहते हैं. इफ यू आर द विंड स्लीप, आई एम द बुरिड फायर. सो अगेन ही सेड दैट मीन्स अगर इन केस हिज एनिमी इज अ gust of wind, he is the burid fire, and he can easily mingle with the wind. So by means of its heat, it can spoil the coolness of the wind. तो अगर वो क्या होंगे, गस्ट, उनका एनिमी एक आग का गोला होगा, तो वो क्या करेंगे, मतलब हवा में मिल जाएंगे, हवा हो जाएंगे. तो हवा होने से क्या होगा, फायर वहाँ पे मिल जाएगा. तो जो हीट है फायर का, वो क्या होगा, हवा होने से उसका बंद हो जाएगा, कूलनेस हो जाएगा, कूल हो जाएगा. तो वो बोल रहे हैं बाय मीन्स ऑफ इट्स हीट इट कैन स्पॉइल द कूलनेस ऑफ द विंड. तो अगर वो फायर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो कूलनेस है हवा का, वो हवा में मिक्स हो जाएगा, हवा भी क्या हो जाएगा, वो आग में गर्म हो जाएगा. तो वो खुद को आग बोल रहे हैं, और उनका एनिमी का जो भी कॉन्स्पिरेसी है, जो भी प्लान है, वो बहुत कूल ही है, उसके सामने, फायर के सामने वो कुछ नहीं टिक पाएगा. सो इफ़ यू आर द वाटर्स माउथ, आई एम द माउथ ऑफ मस. अगेन वो बोल रहे हैं कि अगर उनका एनिमी मस जैसा एक्टिंग करेगा तो क्या होगा, ही कैन रेसिस्ट इट. सो इफ हिज एनिमी इज एक्टिंग लाइक मस, बाय एक्टिंग लाइक दिस ही कैन रेसिस्ट हिज एनिमी. सो उनका एनिमी को वो मस की तरह क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे. सो यहाँ पे पोएट खुद को क्या क्या समझ रहे हैं और कैसे कैसे सिचुएशन में खुद को मतलब लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो. सो यहाँ पे वो खुद को मतलब रेडी कर रहे हैं अपने एनिमी के साथ फाइट करने के लिए. खुद को सन की रे के साथ कंपेयर कर रहे हैं. स्टोन अल्टर भी उनके सामने कुछ नहीं है. वो बोल रहे हैं अगर बैरन लैंड भी उनके सामने आ जाएगा तो भी वहाँ पे वो ग्रीन कैन उगा देंगे. मतलब वो खुद को ऐसे पावरफुल समझ रहे हैं, बना रहे हैं. अगर उनका एनिमी फायर, आग का गोला हो जाएगा तो वो मतलब हवा हो जाएंगे, हवा में वो आग मिंगल हो जाएगा, और कूलनेस जो है वो मतलब हवा में वो सब क्या होगा, हीट हो जाएगा. अगेन वो बोल रहे हैं इफ यू आर दी वाटर्स माउथ, आई एम माउथ ऑफ मस. सो मस होके वो जो वाटर माउथ को रेसिस्ट करेंगे. तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पोएट खुद को तैयारी कर रहे हैं अपने एनिमी के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए. मतलब
कितना फ्रस्ट्रेटेड, कितना प्रॉब्लम है इनके लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा उनके हार्ट को चुभ गया है और वो खुद को रेडी करवा रहे हैं कि कैसे वो अपने एनिमी के साथ जूझेंगे। Then if you are the forest of the clouds, I am the axe that parts it. So again वो बोल रहे हैं कि अगर उनका एनिमी क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, तो वो मतलब एक्स बन के उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। Clouds, he is acting as X, and he can make destruction in that forest of clouds. मीन्स अगर फॉरेस्ट घना हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे में सन रे नहीं आएगा, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो अगर उनके लाइफ में उनका एनिमी अंधेरा ला देगा तो क्या करेंगे, वो जो अंधेरा लाने वाला पेड़ को, फॉरेस्ट को वो काट लेंगे एक्स बन के, ऐसा वो बोल रहे हैं इसी पोएम में। फिर इफ़ यू आर द प्रोफेंट सिटी, आई एम द रेन ऑफ कंसिक्रेशन। सो अगेन वो बोल रहे हैं कि अगर द रेन ऑफ कंसिक्रेशन टू प्यूरिफाई सच एन अनहोली सिटी, अगर उनका एनिमी क्या होगा, प्रोफेंट सिटी हो जाएंगे, अनहोली सिटी अगर हो जाएंगे, तो वो मतलब पोएट खुद को एक पवित्र रेन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो रेन ऑफ कंसिक्रेशन हो के क्या हो जाएगा, जो अनहोली सिटी है उसको क्या कर देंगे, होली बना देंगे। मतलब कुछ भी वहाँ पे ख़राब चीज़ नहीं रहेगा, और जो कंसिक्रेशन रेन आ जाएगा, पोएट खुद को कंसिक्रेशन रेन के संग तुलना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो अनहोली सिटी है उसको क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे। सो मतलब खुद को उतना पावरफुल और प्यूरिफाइड वो समझ रहे हैं और बना रहे हैं। इफ़ यू आर द येलो माउंटेन, आई एम द रेड आर्म्स ऑफ लीचन। अगेन ही सेड दैट व्हाट इट इज़, येलो माउंटेन इज़ वेरी फेमस ब्यूटी नेचर है, जो चाइना में येलो माउंटेन बहुत ही फेमस है उसका वो नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो बोल रहे हैं अगर तुम मतलब अपना एनिमी अगर खुद को येलो माउंटेन समझ रहा है तो क्या कर लेंगे, रेड आर्म्स ऑफ लीचन, मतलब स्किन में जो डिजीज होता है ऐसा वहाँ पे स्पॉट, रेड कलर का स्पॉट कर देंगे, जो कि वो ब्यूटी को, माउंटेन, येलो माउंटेन का ब्यूटी को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। मतलब वो अपने एनिमी के सब कुछ प्लान एनिमी के प्लान को क्या कर लेगा, वो मतलब सब ख़राब कर देंगे पोएट। मतलब जो येलो माउंटेन है उसका ब्यूटी के लिए जो जाना जाता है, वो ब्यूटी में भी क्या कर देंगे, स्पॉट कर देंगे, जो कि ब्यूटी ख़राब हो जाएगा। सो इफ़ यू आर द राइजिंग सन, आई एम द रोड ऑफ ब्लड। अगेन ही सेड दैट अगर उनका एनिमी इन केस क्या हो जाते हैं, राइजिंग सन होते हैं, तो आई एम द रोड ऑफ ब्लड, तो वो रोड ऑफ ब्लड जैसे हो जाएंगे। मतलब रोड में ब्लड बिछा देने से जैसा हो जाता है वैसे वो हो जाएंगे। तो अगर उनका एनिमी उनके साथ सुलह करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ करना चाहेंगे भी, तो पोएट राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने एनिमी से उतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि उनके अगेंस्ट मतलब बहुत सारा वो नेगेटिव थिंग्स उनके माइंड में चल रहा है। तो कुछ भी अगर उनका एनिमी उनके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे फिर भी तो क्या करेंगे, मना कर देंगे। सो दिस इज अबाउट द पोएम मोशन रिटन बाय ऑक्टावियो पोच। सो दिस इज द पोएम। आई थिंक कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Subscribe, like and share my video so that you can get more and more video on different topic. Thank you.